First of all, you please show that this one, uh, training data. Okay. It didn't share this. What you wanted? This one. Now open this dashboard. Okay. So I think इतना चीजें हमने clear कट किया था अपना मीटर in the last sessions of Excel. Correct? Yes. That how the slicers work, slicers में Yes. connectivity कैसे आती है, how it is Yes. creating this dynamic look. If you clicking on Europe, you also know that every changement is going to be happen. Correct? Yes. So Yes. this we have done after a lot of efforts of around 1 hour or more than on 1 hour a person need to invest. Correct. Then only they will able to create this kind of dashboard in Excel. Hmm. Okay, so the same thing now Correct. we are going to create in Power BI also with less efforts. Okay. So for Okay. that option, now first of all, we need to understand the basic of that Power BI. So you please open that PPT. Okay. So Meeta, अभी आप मुझे बताइए, if I say that we are going to start Power BI or actually you are going to work on Power BI, so what you Hmm. understand with that? I do not have any idea for that. Okay, fine. So see, I'll just give you 2 or 3 criterias in this case. See, if I'm working on a reporting part of my company, so that Power BI will be a cleaning part for me. That I'm going to Oh, okay. organize my data, I'm going to Hmm. clean my data, and I will do different kind of removing and adding the material by Dex. Okay. Now, when it comes to you, you are a presentation person, so you need to present your ideas and visualization again and again to the management. So it means Okay. that Power BI is a tool for you, which will help you out in the creation of visualization and charts. Okay, Okay. and if you Okay. are a person of a technical team, then Power Hmm. BI will support you in the Power BI server so that you will able to put your information on servers. Hmm. Okay, so there is a lot of, I can say there is a lot of difference in definition from person to person. Okay, Hmm. but Okay. one slight definition, if I give you, this Hmm. Power BI is a collection of software services, apps, and connectors. So first of Hmm. all, we need to understand. First of all, we need to understand that what is connectors, what are software services, and what are the connectors in this case. Correct. So for Hmm. that option, we need to open Power BI. So have you downloaded that Power BI in your system? Yes. Okay, so just open that once. Power BI. Power BI introduction. No, not Power BI introduction. I'm Oh, saying Power go. BI software. Just like Excel, we have Power BI also need to be installed in our systems. Okay, so that I'm Okay. saying. So, okay, not an issue. So we are going to download it also. So can you please approve this one? Yeah. So how we are going to download this Power BI? See, there is 2 options, Meeta. Either you download this Power BI from Microsoft Store, okay, Hmm. or you Hmm. can download this from powerbi.com also. लेकिन अभी क्या है Okay. इसमें ना एक बहुत सिंपल सा डिफरेंस है बट वो काफी प्रॉब्लम करता है आगे. जस्ट टेक Hmm. एन एग्जांपल. अभी आपके फोन में व्हाट वी आर हैविंग अपडेशंस. करेक्ट. तो एक Hmm. अपडेशन तो ऐसा होगा जो आपको ना हर महीने आता होगा और उसको वो आपसे पूछता नहीं है कि वेदर आई नीड टू अपडेट और नॉट. करेक्ट. Hmm. और Hmm. वो अपने आप ही हो जाता है. सेम वे एक अपडेशन आपका ऐसे है जिससे कि उसको आपको अपडेट खुद करना पड़ता है जिसको हम एप्स अपडेशंस बोलते हैं. करेक्ट. Hmm. Okay. सो दैट थिंग ओनली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अपडेशंस आपको ऑटोमेटिकली चाहिए और यू वांट दोज अपडेशंस टू बी डन वन बाय वन. तो जब हम पावर बीआई से करते हैं ना, सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस कि हमारे को ये प्रॉब्लम होता है कि बार बार करना पड़ेगा हमें. ओके. और वहीं पे Okay. जब हम माइक्रो, मैं देखिए यहाँ पे ना डिफरेंस लिख देती हूँ. अगर मैं ऐसे वर्बली बोलूंगी तो इट्स नॉट इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. देखिए, Hmm.
when we download Power BI from powerbi.com, it हम्म means that you need to update manually. oh, Okay? okay. आपको मैन्युअली उस चीज को अपडेट करना पड़ेगा। अब क्या चीज को अपडेट करना पड़ेगा, देखिए पावर बीआई में ना मीता हर महीने अपडेशंस आता है। जैसे Oh, अभी क्या है, okay. अभी कोई अपडेशन नहीं है, लेकिन विद इन 20th of December या 25th of December तक देयर विल बी अपडेशंस इन पावर बीआई। तो हर महीने अपडेशंस आता है, हर महीने एक दो नए चार्ट से एक दो नए डेक्स फॉर्मूला उसमें ऐड होते रहते हैं। ओके। Okay. और उसी के साथ साथ एक होता है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड करना। अब व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, इसमें कोई मैनुअल अपडेशंस नहीं है, दिस इज ऑटोमेटिक अपडेशंस। वो अपने Okay. आप ही कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका पावर बीआई आपका अपडेट हो जाएगा। अच्छा, okay. ओके। तो यू टेल मी विच वन इज बेटर देन Microsoft. माइक्रोसॉफ्ट। सो वी आर गोइंग टू डाउनलोड फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट ओनली। तो आप यहाँ पर लिखिए माइक्रोसॉफ्ट स्टोर 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 स्टोर। Oh, अब आप यहाँ पर वंस यू टाइप दैट थिंग ना, mm. एक मिनट लोड हो जाने दीजिए। नहीं अभी ओपन, हाँ सी दिस इज ओपन हेयर। सो हेयर इफ वी टाइप ओनली पावर बीआई तो बहुत ऑप्शंस आपके पास आएंगे, बिकॉज पावर बीआई इज अ फॉर्म ऑफ अ ऐप ऑल्सो। तो हमें Mm. चाहिए पावर बीआई डेस्कटॉप। Okay. ओके। एंड वी आर गोइंग टू लोड दिस बाय गेट डेटा। Mm. I think this laptop is having Power BI. अच्छा, एक बार देख लेते हैं। अगर होता ना तो फिर ये लोड नहीं लेता मेरे ख्याल से। नहीं है, नहीं नहीं है। अच्छा, तो फिर ठीक है। करना पड़ेगा। तो अब मेरे सिस्टम में जो पावर बीआई दिखा रहा है वो अलग का है। वो पावर पॉइंट है। ना ना, ये वाला नहीं, ये वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आपका सिस्टम का है या फिर आपने ऑनलाइन पे देखिए, आप ना powerbi.com से यूज कर रहे हो, करेक्ट? हम्म ये मेरे हम्म। का है। ये आपकी कंपनी का है? हाँ, ये वाला कंपनी का है। हाँ, तो यहाँ पर पता ये है आपका लाइसेंसिंग का। ओके। हम्म सो व्हेन हम्म क्योंकि इसी पावर बीआई पे देयर इज नंबर ऑफ पर्सन हु इज वर्किंग एट द सेम टाइम, राइट? और साथ के ओके। साथ ना उनकी जो एक्टिविटीज हैं या फिर जो भी उनकी रिपोर्ट्स वगैरह है वो साथ के साथ दे आर वर्किंग ऑन सर्वर्स। ओ, ओके। ओके। ये एक यस यस, पावर दे। बीआई सर्वर है जहां पर आप हाँ। काम कर रहे हो, एंड वी आर गोइंग टू वर्क ओवर पावर बीआई डेस्कटॉप। डिफरेंस सिर्फ ओके। इतना है, दिस सर्वर हैज आईडी, आपको जरूर आईडी मिला होगा इसको ऑपरेट करने के लिए। हाँ 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 हाँ। हाँ। तो उस आईडी से क्या होता है कि आपका जो काम है इट विल बी ऑनलाइन, बट अगर हम पावर बीआई डेस्कटॉप पे काम करते हैं दिस इज नॉट एन ऑनलाइन फॉर्म, दिस इज एन ऑफलाइन फॉर्म। ओ, ओके। ओके। तो आपको बैकएंड सारा काम उधर से मिल जाएगा, लेकिन जो पब्लिशिंग का वर्क है वो सब आपको पावर बीआई सर्वर ही अलाउ करता है। अच्छा, ओके। ओके। सो ये डिफरेंस है। तो ये देखिए, ये ना powerbi.com से कर रहे हैं, तो ये तो आप अपना देखिए क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल है, तो ये मैं ज्यादा यूज नहीं करूंगी। आई हाँ, वर्क ओवर ठीक। पावर बीआई डेस्कटॉप ओनली। ओके। ओके। तो अभी इसको डाउनलोड होने में लगेगा थोड़ा सा टाइम। लेट्स कम बैक टू आवर पीपीटी। तो जैसे इसने बोला अभी कनेक्टर्स के बारे में, दैट विल चेक कि व्हाट आर द कनेक्टर्स हियर। अब कनेक्टर्स का क्या बोलता है ना, टू टर्न इनटू अनरिलेटेड सोर्सेज ऑफ डेटा इनटू करेंट। तो अभी आप मुझे हम्म ये बताइए अमिता कि मैंने अभी आपको एक पीडीएफ शेयर किया, एक पीपीटी शेयर किया और एक एक्सेल शीट शेयर किया। सो यू टेल हम्म मी ऑल द थ्री हैव द सेम फॉर्मेट? नो, दे आर तीनों के हैविंग पास, डिफरेंट। राइट, सो तीनों के पास अपना डिफरेंट फॉर्मेट है। हम्म तो एक एग्जांपल, अगर आप एक फाइल लोड करते हो इन पावर बीआई, वन इज एसक्यूएल सर्वर, एक एसक्यूएल सर्वर से है, एक हम्म एक्सेल से है, एक पावर बीआई डेटा सेट्स है, एक पीडीएफ है। तो आई हाँ, थिंक कि सबका फॉर्मेट चेंज होगा, करेक्ट? सबका फॉर्मेट ओके। डिफरेंट है ना। हम्म। पावर बीआई का अलग फॉर्मेट होता है, एक्सेल का अलग फॉर्मेट है, पीडीएफ का अलग फॉर्मेट है। सो द सेम हाँ, थिंग दे आर सेइंग कि जो अनरिलेटेड सोर्स होता है, मतलब जो जितने भी सोर्सेज से आपने डेटा लाया है हम उसको कॉरेंट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। व्हाट इज ओके। कॉरेंट स्ट्रक्चर मींस सिमिलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं, सो दैट
इट कैन बी डन एज विजुअली, मतलब हम उसको ग्राफ्स वगैरह में चेंज कर सकते चेंज करें। हैं। एंड दैट डेटा कैन बी एक्सेस स्प्रेडशीट, जैसे मैंने बोला, इट कैन बी इन क्लाउड बेस्ड डेटा, इट कैन बी हाइब्रिड डेटा, वो कुछ भी हो सकता है। ओके। ओके, पावर BI लेट यू इजीली कनेक्ट टू योर डेटा सोर्सेज, विजुलाइज एंड डिस्कवर। ये अभी पॉइंट्स हम देखेंगे कि कैसे करने देते हैं। फिर नेक्स्ट चीज आती है आपकी कंपोनेंट्स ऑफ पावर BI। अभी क्या हुआ, जैसे आपने मुझे सर्वर दिखाया अपना, तो क्या है, अभी क्या है, हम पावर BI डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं, सो दिस इज बेसिकली अ फ्री एप्लीकेशन। आपका जो पावर BI आप यूज कर रहे हैं वो फ्री नहीं है, दैट इज अ पेड फॉर्म। तो उन्होंने ओके। प्रो या प्रीमियम लाइसेंस लिया है और वो फिर आपका पेमेंट जाता है उसके लिए। बट ओ once you are using Power BI this desktop, so there is no payment related to this. This is a free application, और ये आपका ना ओके। मैकबुक में सपोर्टेड नहीं है। ओ इफ यू आर ओके। गोइंग टू यूज दिस ऑन मैकबुक या फिर कोई भी एप्पल लैपटॉप, सो दे विल नॉट। ओके, दे विल नॉट सपोर्ट। हाँ, वो आपका आईफोन पे भी सपोर्ट नहीं करेगा पावर BI। ओ ओके ओके। सो वो एंड्रॉइड, विंडो, इन सब पे ही काम करता है। अच्छा ठीक है। ओके, अभी क्या है ना, इसमें एक लिखा हुआ है, विद पावर BI यू कैन कनेक्ट टू मल्टीपल डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डेटा, कंबाइन देम इनटू अ डेटा मॉडल। अभी आपने कभी डेटा मॉडलिंग की है अपने पावर BI में जो आप यूज करते हैं? ना 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 ना, मैंने नहीं की अच्छा, है। ठीक। तो अभी मैं इसका बताती हूँ। देखिए, अभी आप देखोगे ना, तो यहाँ पर ना कॉमन यूजेस लिखे हुए हैं। मैं यहाँ पर हम्म कुछ स्टेप्स लिखती हूँ कि हाउ पावर BI इज गोइंग टू वर्क। अगर मैं एक्सेल में जाके यहाँ पे स्टेप्स लिखूं, हम्म टू यूज पावर BI। देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आप डेटा को कनेक्ट करोगे। हम इसको कनेक्ट करना भी बोल सकते हैं, और वी कैन से वी आर लोडिंग अ डेटा, लोड द डेटा। ओके, हम्म सेकंड चीज क्या है, सेकंड थिंग इज टू, आप बोल सकते हो कि हम उस डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, या आप बोल सकते हो दैट यू आर क्लीनिंग दैट डेटा। ये होता है इसका सेकंड स्टेप। ओके। थर्ड स्टेप इज टू कनेक्टिंग दिस वन, थर्ड स्टेप इज टू डेटा मॉडल, कि आप उसकी हम्म एक डेटा मॉडलिंग क्रिएट कर रहे हो, एंड देन हम्म यू आर क्रिएटिंग अ विजुअलाइजेशंस। ओके। एंड विजुअलाइजेशंस को करने के बाद, इफ यू नीड टू गो फॉर अ डैशबोर्ड, यू कैन क्रिएट दैट डैशबोर्ड, एंड देन हम्म थ्रू ऑनलाइन वर्जन्स यू कैन पब्लिश दैट इंफॉर्मेशन टू योर सर्वर्स। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं इन दिस पावर BI। तो हमें वन बाय वन सबको यहाँ पर अभी करना है। ओके, ओके। सो अभी हम देखते हैं कि हमारा पावर BI कितना डाउनलोड हुआ है। इट्स ओपन नाउ। तो अभी सबसे पहले ना मैं आपको कनेक्टर्स दिखाती हूँ इसके। हम्म ये जो मैंने लिया है उसमें एसक्यूएल और पाइथन है, इंक्लूडेड है? नहीं, इसमें देखिए अभी पाइथन के लिए तो कनेक्टर ही नहीं है। ना ना, मेरे जो कोर्स में है उसमें एसक्यूएल एंड पाइथन दोनों इंक्लूडेड है। पावर BI में देखिए, वो नहीं, एसक्यूएल, और मेरे। मैं बताती हूँ, जो एसक्यूएल है ना, दैट इज अ डिफरेंट कोर्स। क्योंकि देखिए, एसक्यूएल पावर BI में कितना, मैं वो भी क्लियर करती हूँ। व्हाट हैपन हम्म ना कि जैसे अभी मैं कनेक्टर्स का बात कर रही थी, सो दिस इज बेसिकली द फुल पावर BI स्क्रीन इन दिस केस। ओके, तो देखने में तो काफी हद तक अगर हम देखें, होम, इंसर्ट, मॉडलिंग, तो एक्सेल जैसा ही है, करेक्ट। ऐसे ही लेकिन दिखता है, अगर हाँ। राइट हैंड साइड और आप लेफ्ट हैंड साइड देखोगे ना, वहां पर बहुत डिफरेंस है। ओके ये यहाँ पर जहाँ पर विजुअलाइजेशन, डेटा एंड फिल्टर्स लिखा है, और यहाँ पर, ओके। यस यस। क्या मिता, ये थोड़ा डिफरेंट है। वरना ऊपर का अगर काफी हद तक जैसे होम, इंसर्ट वगैरह होता है हमारा वर्ड और एक्सेल में, सेम चीज। हाँ हाँ। अब क्या ओके। हुआ, ये जो गेट डेटा है ना, गेट डेटा का सिंपल मतलब होता है कि पावर BI में आपके पास कनेक्टर्स हैं, जिनको आप अपना हम्म डेटा सोर्स लेने के लिए चेक कर सकते हो, वो हम्म यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो एसक्यूएल सर्वर सिर्फ एक सोर्स है थ्रू विच यू विल एबल टू गेट योर डेटा इंसर्टेड। ओके ओके, और जो पूरा एसक्यूएल है वो एक डिफरेंट कोर्स है, वो बहुत वाइड पार्ट है, उसमें पूरा का पूरा कोडिंग होता है, दैट वी आर ओ नॉट गोइंग टू ओके इंक्लूड। और साथ के साथ पाइथन भी, दैट अगेन अ डिफरेंट थिंग, तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। बट यस, पावर BI हैज इंक्लूडेड द स्मॉलेस्ट पार्ट, कि आप डेटा सोर्स अपनी आईडी वगैरह से यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके ओके लिए भी आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल आईडी होनी चाहिए, जो आपको दी हुई है। अच्छा। ओके, दैट इज ओके। द वे। अभी हमारा मेन काम क्या है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि
पहला स्टेप क्या होता है, कनेक्ट और लोड द डेटा। ओके, तो आज हम ना पहला ही अपना स्टेप करना सीखते हैं कि पहला स्टेप हम कैसे करेंगे। तो वी नो कि हमारे पास एक एक्सेल फाइल है, तो यू गो टू दैट गेट डेटा इंफॉर्मेशन, गेट डेटा का जो ऑप्शन है आपके पास, आपकी आवाज कटी। आई एम सेइंग क्लिक ऑन गेट डेटा। गेट डेटा। हाँ हाँ, फ्रॉम नाउ एक्सेल, नहीं नहीं, अभी हमारा एक्सेल ही है ना। फ्रॉम एक्सेल। ओके। हाँ, तो आप कनेक्ट कर दो, और कनेक्ट करने के बाद हमारा काम होगा अपनी फाइल को चूज करना। तो अभी जो ट्रेनिंग डेटा वन में दिया वही आपको इधर डालना है। अब आप जैसे ही ओपन करोगे, सो हमने जैसे ही ओपन किया ना, यू विल एबल टू सी वो जितनी भी शीट्स हैं एक फाइल में वो सब आपके सामने विजिबल है। सो आई एम जस्ट गोइंग विद दिस डेटा वन, दिस प्रीव्यू इज देयर विद मी। अब यहाँ पर ना बोथ ऑप्शन इज देयर विद यू, ट्रांसफॉर्म द डेटा एंड लोड द डेटा। करेक्ट हम्म। मीता? तो अभी हाँ हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो तो सिर्फ लोड है, तो मैं सिर्फ हाँ। लोड पे अभी क्लिक करूंगी। ट्रांसफॉर्म मैं आपको बताऊंगी कि कैसे होता है। हम्म। अब जैसे ही आपने डेटा लोड किया ना, आप अपनी टेबल में चेंजेस देखना है इस पूरी व्यू में। हाँ अभी हम राइट हैंड साइड देखते हैं सबसे पहले। अभी डेटा जो है वो बिल्कुल ब्लैंक है, डेटा वाला। हाँ करेक्ट। हाँ हाँ। अभी ओके जैसे ही ये मॉडल बन के तैयार होगा, देन यू विल एबल टू सी। ओके। ठीक है, अब आप राइट हैंड साइड में देखो, पहले तो यहाँ पर कुछ नहीं था। नहीं था, हाँ करेक्ट। ब्लैंक था। बट नाउ वन शीट हैज कम विद द डेटा नेम, डेटा वन। हम्म। उसके हाँ। साथ साथ ना उसके पास जितने भी कॉलम्स है, लाइक दे हैव चैनल कॉलम, सिटी, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कंट्री, मैन्युफैक्चर, उसमें सारी डिटेल्स है। हम्म। करेक्ट। तो उसने वो हाँ। सारे कॉलम्स नेम दिए, डिटेल्स नहीं दिए, ओनली कॉलम नेम इज विजिबल टू यू। हम्म करेक्ट। हम्म हम्म और अभी मैं आपको एक चीज और दिखाती हूँ। अब हम जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ओके अगर आप देखोगे, दिस इज रिपोर्ट व्यू, जहां अभी हम खड़े हैं दैट इज रिपोर्ट व्यू ओनली। अब हम ओके। सेकंड पे गए, दैट इज टेबल व्यू। हम्म। टेबल दिखी है आपको पूरी? हाँ देखिए। सो ऑर्डर आईडी इज कमिंग, ऑर्डर डेट इज कमिंग, यूनिट कॉस्ट, प्राइस सब आया। हम्म। करेक्ट। अभी मैं यस। इसको ओपन करती हूँ। अब आप ये देखो, जो आपका ना चैनल है वो एक अल्फाबेटिकल वैल्यू है। करेक्ट। हम्म। तो उसके पीछे तो कोई सिंबल है नहीं, लेकिन कॉस्ट ऑफ हाँ सेल्स क्या है? न्यूमेरिकल। हाँ न्यूमेरिकल है तो उसके उसके वजह से। पीछे सिग्मा सिंबल दे रखा है। हाँ और ऑर्डर डेट क्या होती है? वो आपकी एक डेट डेट होती होती है। है, तो उसके पीछे हम्म कैलेंडर दे रखा है। सो व्हाट आई एम हम्म। ट्राइंग टू से, जो पावर बीआई इट इज क्लासिफाइंग योर डेटा। इफ योर ओके। डेटा टाइप इज टेक्स्ट, अगर वो टेक्स्ट वैल्यू है तो वो उसको कोई सिंबल नहीं देगा। नहीं देगा। इन द केस हाँ। ऑफ न्यूमेरिकल इट विल शो यू अ सिग्मा सिंबल। और वहीं पे जब ओके कैलेंडर होगा, देन इट विल शो यू दिस काइंड ऑफ कैलेंडर। ओके गॉट इट। अंडरस्टूड? हाँ। तो ये खुद क्लासिफाई करता है, हम नहीं करते हैं इसको। ये ओके। ऑटोमेटिकली इट विल क्लासिफाई दैट इंफॉर्मेशन। हम्म। तो ये जो डेटा है यहाँ पर, आप जितनी भी टेबल्स इसमें जनरेट कर लो, वो सारी टेबल्स आपको यहीं पर दिखेंगी। ओके। ओके। फिर हाँ आता है हमारा विजुअलाइजेशन। नाउ व्हाट इज विजुअलाइजेशन? देखिए, इन एक्सेल आल्सो वी हैव डन अ लॉट ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, राइट? हाँ हमने काफी हाँ। ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस ऑलरेडी किया हुआ है। तो व्हाट आई हम्म एम ट्राइंग टू से कि यहाँ पर भी आपके पास सिर्फ चार्ट्स नहीं है, आज मैं सिर्फ आपको चार्ट्स दिखा रही हूँ। हम्म अदरवाइज हियर ओनली इन द विजुअलाइजेशन वी हैव लाइक 10% ऑफ वर्क ऑन आवर डैशबोर्ड। ओके, हम्म ये जो सामने दिख रहा है, और इसके अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं। तो आई एम जस्ट टेकिंग दिस वन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ताकि मैं आपको दिखा सकूं। हम्म। ओके। मुझे क्या चाहिए, आई वांट टू गेट द डिटेल्स ऑफ चैनल वाइज हम्म टोटल सेल्स जनरेटेड। करेक्ट, मुझे हम्म। चाहिए ये। तो मुझे कुछ ओके। नहीं करना, आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दैट। मैंने चैनल पे क्लिक किया, और मैंने नीचे जाके सेल्स पे क्लिक किया। ओके। इट्स डन। ओ। तो देखा जाए एक्सेल में तो वी नीड टू क्रिएट दैट पाइवर्ट एंड देन प्रेस ऑल्ट F1, तब बनता था। तब बनता था हाँ। राइट। और यहाँ ये पर वो कितना इजी है।
हम्म जस्ट मैंने कोई भी एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अपने हिसाब से उठाया, मैंने बोला कि दिस टाइम आई नीड टू गेट द डिटेल्स एज रीजन वाइज प्रॉफिट, सिर्फ एक मार्क का टिक करते ही आई विल एबल टू गेट सी। ओ ओके। ओके, तो ये तो अभी एक एडवांटेज आपको पता चला, देयर इज मल्टीपल एडवांटेज। ये हम क्यों पावर बीआई को यूज करते हैं ओवर एक्सेल। ओके मैं इस विजुअलाइजेशन को इधर थोड़ा सा तो अभी क्या है ना, दिस फिल्टर ऑप्शन ऑल्सो, ये वाला फिल्टर पेन आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस विद यू टुडे, अदरवाइज वो ओके। कंफ्यूजिंग होगा, तो मैं थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स आई विल डिस्कस एवरीथिंग। ओके, ठीक दिस है। वन मैं ओके। लेटर आई विल। उसी के साथ साथ दिस इज माय रिपोर्ट व्यू, तो ये दो रिपोर्ट्स हमने बनाई ना, दिस इज रिपोर्ट, यस। दिस इज योर टेबल व्यू हम्म। एंड दिस इज योर मॉडलिंग व्यू। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ना मैंने थर्ड स्टेप लिखा था, दैट इज कॉल्ड डेटा मॉडलिंग। In this हाँ sheet ठीक है, too, I have मॉडल। given you third step that is called data modeling. तो ये जो हाँ। थर्ड स्टेप है वो यही है, this one, data modeling. Okay, so data ओके। modeling is all about connecting different tables, but अभी हमारे पास एक ही टेबल है, तो यहाँ पर data modeling काम नहीं करेगा। ओके। Okay, more than one के साथ ही वो काम करता है। तो if I come back to my PPT, तो अब मुझे पता चला कि okay fine, we are having this one ना, we have हम्म। different connectors and by the एक मिनट ये, हाँ, एड नोट्स हो रखा है नॉर्मल। खुला ही है ऊपर नीचे शायद। एक मिनट में फिट करती हूँ उसे। ठीक है। ओके, सो कॉमन यूज ऑफ पावर बीआई, कनेक्ट, जो अभी हमने लोड करके देखी अपनी टेबल। ट्रांसफॉर्म एंड क्लीन, मैंने अभी आपको नहीं बताया है कि क्या होता है। क्रिएट अ हम्म मॉडल, थोड़ा सा आइडिया दिया है। हम्म विजुअलाइजेशन, एक बस एक ग्राफ करके दिखाया है मैंने आपको। हम्म हम्म। शेयर रिपोर्ट्स विद द अदर्स बाय यूजिंग पावर बीआई सर्विसेज, जो आप यूज करते हैं। आप अपना हाँ। सोर्स जो शेयर करेंगे वो पावर बीआई सर्विस के थ्रू ही करते हैं। ओके, सो दीज ओके। आर द जनरल पॉइंट्स, ये कुछ ऐसा नहीं है जो जिस जनरल पॉइंट्स हैं आपके लिए। हम्म नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ पावर बीआई। नाउ व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ पावर बीआई, कि मोस्टली ना ये काम कैसे आता है, जैसे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर एप्स भी हैं आपके पास, करेक्ट। हाँ तो हाँ। व्हाट हैपन, अगर आप एक बैकएंड वर्क करते हो, सो देयर इज अ नीड कि आप पावर बीआई डेस्कटॉप पे काम करोगे, बट इफ यू हम्म। आर अ मैनेजमेंट पर्सन ना, तो आपको इतना टाइम नहीं है, यू विल जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट, करेक्ट। ओके। तो उसके लिए ना वी आर गोइंग टू यूज दिस पावर बीआई मोबाइल एप्स, रिपोर्ट बिल्डर, रिपोर्ट सर्वर। ये जो मोबाइल एप्स है, दिस इज फॉर विजुअलाइजेशन, कि सिर्फ आप देख सकते हो उसको, जिसे ओके। स्क्रॉल करते हैं ना हम पिक्चर को, हाँ तो वो एक हाँ तरह से हाँ पिक्चर फॉर्मेट में उस पर्सन के पास जाएगी, बट दे विल नॉट बी एबल टू मेक सो मच ऑफ चेंजेस, सिर्फ हम्म। थोड़ा बहुत कमेंटिंग कर सकते हैं। व्हेन इट ओके। कम्स टू रिपोर्ट बिल्डर, तो ये थोड़ी पैजिनेटेड रिपोर्ट्स बनाने के काम आता है, पिक्चर्स वगैरह से इंक्लूडेड। एंड देन हम्म। रिपोर्ट सर्वर, जिसपे आपका सारा का सारा वर्क ऑनलाइन सबमिट होता है, दैट इज कॉल्ड रिपोर्ट सर्वर। ओके। ओके, तो ये तो बात हुई अबाउट द पावर बीआई ऐप, जो हम पावर बीआई डेस्कटॉप पर अपना यूज करें, उसका क्या प्लस पॉइंट है या फिर क्या उसमें होना चाहिए। बट विद हम्म। दैट सपोर्ट नमिता, योर सिस्टम ऑल्सो शुड बी कैपेबल ऑफ वर्किंग ओवर पावर बीआई। ओ। तो यहाँ पर ओके। तो लिखा हुआ है सिस्टम रिक्वायरमेंट, मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको। once you हम्म press window R ना, in that window हम्म। R we need to type ms info 32। once you do this ms info 32, तो आपका जो सिस्टम का हेल्थ है, जो प्रॉपर्टीज है, वो सारी आपके सामने आ जाएंगी। ओके। ओके, तो एज ऑफ नाउ दिस इज 32 बिट्स और यहाँ पर मैं 8 GB है, तो देखिए ये दो चीजें होनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोर हम्म देन 4 GB पे ही ये सिस्टम, ये पावर बीआई ज्यादा सपोर्ट करता है। अगर आप फोर हम्म। जीबी पे काम हो जाएगा, बट जैसे ही आप हैवी रिपोर्ट्स बनाना स्टार्ट करोगे ना, इट गेट स्टार्ट नॉट रिस्पॉन्डिंग। ओ। ओके। ओके, तो एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम आपको 4 GB रखना है, बट वो बस एक बना रखा है क्राइटेरिया, 4 GB पे काम हम्म। नहीं होता है, मैंने करके देखा है, तो इट्स नॉट फाइन विद अस। ओके, ओके। तो यहाँ पर आप थोड़ा चेक कर सकते हो कि क्या माय सिस्टम इज कैपेबल, और अगर हम्म। नहीं है ना, तो आपका फिर पावर बीआई डाउनलोड भी नहीं होता। वो ओ। डाउनलोड ही इसीलिए हुआ है क्योंकि आपका पावर ये सिस्टम सपोर्ट करता है। अच्छा ठीक है। ओके, सो दिस हम्म। इज द वे। साथ के साथ विद द सिस्टम देयर इज लाइक ब्राउजर्स आल्सो, जो आप यूज कर रहे हैं
गूगल, हम्म माइक्रोसॉफ्ट या कुछ भी XYZ ऑप्शन जो आप यूज कर रहे हैं, दैट शुड बी अपडेट। तो पावर बीआई के साथ ना हमें बहुत ही अपडेटेड चीजों के साथ काम करना पड़ता है। ओके, ओके। देन ओनली वी विल एबल टू वर्क। अभी हम्म इसमें एक दो चीजें आज मैं आपके सामने रखूंगी। और हम्म द लास्ट वन इज दैट पीडीएफ जो मैंने आपको भेजा था। हाँ, पीडीएफ कहाँ पर है? वो यहाँ पर ये होगा मेरे ख्याल से। ये हाँ, तो नहीं है। देखिए ये ना एक बार आप देख लीजिएगा, दिस इज नथिंग, जस्ट मैंने एक ना शेयर कर दिया है आपको, ताकि हाँ, एटलीस्ट यू हैव अ नॉलेज कि हम पावर बीआई सेशंस में क्या क्या इंक्लूड करेंगे। तो ये ओके। वन बाय वन पॉइंट्स हैं जो मैं अपकमिंग सेशंस में आपको धीरे धीरे करके बताती रहूँ। ओ, ओके, तो ये जस्ट ओके, आप एक लुक ले लीजिएगा, बाकी कुछ नहीं। ठीक है। अब हम आते हैं अपना इधर बात करने में। तो अभी तो मैं हम्म इसको रिमूव करूंगी मैं आज, क्योंकि हम चार्ट्स के बारे में लास्ट सेशन हमने रैप किया था अपना उसमें एक्सेल में। तो आज मैं थोड़ा चार्ट्स के बारे में ही बात करूंगी। तो सबसे ओके, पहले इट्स अप टू यू, यू चूज एनी काइंड ऑफ चार्ट फ्रॉम दिस साइड, कोई भी एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आप ले लीजिए। ओके। लेट मी टेक लाइक लाइक यस। ओके, हम्म ठीक है। अब आप अपने हिसाब से वैल्यूज भी पिक कीजिए। यू नो कि जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो एनीथिंग कैन बी न्यूमेरिकल और अल्फा, ये होनी चाहिए। तो इट्स अप टू यू, आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ से। न्यूमेरिकल एंड अल्फाबेटिकल। हम्म, I will take city wise cost of sales. Yeah. ओके, सो इट इज कमिंग। Yes. ओके, सो ये दिस इज बेसिकली शोइंग इट टू यू दैट कॉस्ट ऑफ सेल्स एज पर सिटी। सो इफ यू आर गोइंग टू सी ना, सिटी काफी है, बहुत है यहाँ पर डिटेल्स। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, विल कीप दिस वन। सो वन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन वी हैव डन, दैट्स द लाइन हम्म चार्ट as per city of this one, cost of sales as city. Now second one you please do, that is product category wise order quantity. Any graphical presentation you can choose. हाँ, you need to click on visualization। हाँ, कोई भी एक विजुअलाइजेशन आप पिक कर लीजिए। नो, हाँ ऐसे क्लिक करना पड़ेगा, देन ओनली इट विल कम ना। देखिए आया ना। हम्म अब मुझे चाहिए प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज क्वांटिटी। Product category wise and order quantity. Okay. ओके, सो दिस इज शोइंग। अभी यहाँ पर भी कैटेगरी काफी होंगी अभी तो, क्योंकि बिकॉज ऑफ द स्पेस वो इतना दिखा रहा है। अच्छा, इसमें इतना ही, ठीक है, फाइन। सो आई एम प्लेसिंग इट हियर। नाउ आई विल कम बैक। अब मैंने ये डोनट चार्ट लिया एंड आई एम गोइंग टू मेंशन दिस चैनल वाइज प्रॉफिट। सो दिस हम्म बिकम्स वन पाई चार्ट आल्सो। Okay. Correct. Same हम्म way, there is one funnel chart also. So in the case of funnel chart, I'm taking this reason why sales generated. So this is my हम्म one chart. Correct. So अच्छा। see, there is a lot of graphical presentation options with you. It's up to you. Whatever you need to use, you can हम्म have it here. अब यहाँ पर ना एक there is a tree map also. अब tree map क्या करता है? अगर मैं इसको देती हूँ सब कैटेगरी, I'm हाँ। selecting over subcategory and I'm putting this profit generated. So you will हम्म able to see कि यहाँ पर ये values है, देखिए। It is a kind of filling कि जिसका जितना ज्यादा एरिया है उतनी ज्यादा फिलिंग उसको मिल रही है। Filling है, हाँ। करेक्ट। तो हम्म इस तरह के ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलेंगे एंड आई विल लेट यू नो कि हाउ टू फॉर्मेट दिस इन अ कंडीशनल वे। जो हमने कंडीशनल ओके। फॉर्मेटिंग की थी एक्सेल में, अब हम ग्राफिकल के साथ करेंगे। हम्म Okay? लेकिन वो पॉइंट्स आएंगे वन बाय वन। अब क्या हुआ यहाँ पर, एक जगह हमने प्रॉफिट दिखाया, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऑर्डर क्वांटिटी, सेल्स, काफी चीजें, राइट। नाउ आई हम्म एम प्रेजेंटिंग वन रिपोर्ट टू यू, पहले मैं वो बना देती हूँ, देन यू लेट मी नो कि दिस इज मच बेटर और दिस वन इज मच बेटर। सो आई हैव सेलेक्टेड दिस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, दिस इज अ वेरी सिंपल कॉलम चार्ट। ओके, एंड हम्म व्हाट आई एम डूइंग हियर मीता, मैं ना रीजन भी पिक कर रही हूँ, क्योंकि आई हैव थ्री रीजंस। रीजन हम्म वाइज प्रॉफिट मैंने सोचा कि आई वांट रीजन वाइज प्रॉफिट दैट विल ओके। बी simply Asia, North America, and Germany, right? And it is ओके। coming in the descending order, हम्म largest to smallest.
फिर हम्म मैंने सोचा दैट आई नीड टू पुट द चैनल ऑल्सो, चैनल भी मुझे चाहिए रीजन के बाद। तो हम्म आप ये देखोगे कि अब यहाँ पर ना इट इज कमिंग लाइक एशिया में कितना चैनल है, जर्मनी हम्म, में कितना चैनल है और नॉर्थ अमेरिका में कितने चैनल्स है। करेक्ट, दिखा ऊपर, एक देखिए अभी एशिया लिखा हुआ है ना। हाँ एशिया है हाँ। मैं ये चीजें मैं आपको आगे बताऊंगी कि मैं क्या कर रही हूँ, बट हाँ फिलहाल नहीं आपको वो देख विजिबल, रही हूँ। हाँ, विजिबल करने के लिए मैं ऐसे, अब दिखा। हम्म तो नीचे आ रहा है एशिया, देन एशिया हाँ के 4 चैनल्स, ऑनलाइन रीसेलर स्टोर ऑनलाइन, देन हम्म जर्मनी, देन नॉर्थ अमेरिका। अब मैंने ओके सोचा कि इसके साथ साथ मुझे कैटेगरी भी शो करनी है। हम्म तो क्या अभी ओ क्लियर कट इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको? नहीं मतलब कंफ्यूजिंग है। काफी दे रहा है बट ना इतना इंफॉर्मेटिव नहीं है। नहीं है राइट। हाँ। तो हम्म व्हाट वी कैन डू, अब देखिए इसी ऑप्शन को ना अगर हम करते हैं एक्सेल में तो वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, हमें क्या करना पड़ता, इसी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता। वन विल बी ओके रीजन वाइज प्रॉफिट, सेकंड चार्ट विल बी चैनल वाइज प्रॉफिट, थर्ड चार्ट विल बी हम्म प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज प्रॉफिट। करेक्ट, ओके यही तो करना पड़ता हमें। हाँ बट इन दैट केस इट्स वेरी सिंपल। हम्म नाउ वी आर गोइंग टू यूज दीज 4 कीज, आज के लिए हम इन 4 कीज के बारे में जानेंगे। सो कैन यू ओके प्लीज रीड इट आउट? the one you have selected is expand all down one level लेवल in the इन हार्चरी। राइट। Chori. तो Yes. अभी सबसे पहले तो ना मैं ड्रिल अप कर रही हूँ, ड्रिल अप से आप हम्म देखना अभी क्या हम्म है, अभी ना कैटेगरी भी दिखा रहा है, हम्म चैनल भी दिखा रहा है और रीजन भी दिखा रहा है। रीजन मैं हाँ। मैंने ड्रिल अप किया। ओके अभी ड्रिल अप करने के बाद मेरा सिर्फ पहला वाला आ रहा है जो कि मेरा पहला हाँ। रीजन है, बाकी नहीं आ हम्म, रहे। अब नहीं मैंने यार। क्लिक किया इस पे, एक्सपेंड ऑल डाउन लेवल इन हियरarchery। अब हम्म रीजन के साथ चैनल्स भी आ गए, आ गए हाँ। और एक और बार क्लिक करूंगी तो चैनल के साथ कैटेगरी भी आ गई। हाँ तो देखा जाए ये दो ऑप्शंस एक दूसरे के अपोजिट है, ये हाँ डेटा को एक्सपेंड कर रहा है और ये वाला डेटा को निकल कोलैप्स रहा है। कर रहा है। हम्म करेक्ट। तो ये हम्म है। तो यहाँ पर क्या है कि आपकी डिटेल्स भी रहेंगी, जब आपको ओपन करना है आप कीजिए, अदरवाइज उसको अनहाइड करके रखिए। हम्म करेक्ट। okay, उसके बाद एक ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं गो टू द नेक्स्ट लेवल। इससे क्या हम्म हो रहा है ना कि जो रीजन है वो भी रहता है और चैनल इंक्लूड हो जाता है। करेक्ट। हम्म बट इस वाले से क्या होगा कि रीजन बिल्कुल ही रिमूव हो जाएगा, सिर्फ आपके सामने वो चैनल की 4 रिपोर्टिंग रहेंगी। ओके एक और बार अगर आप क्लिक करेंगे तो आप ये देखोगे अब चैनल गया, अब सिर्फ कैटेगरी दिख रही है आप। हम्म ओके ये अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज यहाँ पर हम 3 से 4 चार्ट्स नहीं बना सकते, उसके लिए काफी स्पेस चाहिए फिर आप। चाहिए हाँ। करेक्ट। हम्म ओके, अब एक सिंपल सा एग्जांपल आपके पास यहाँ पर है जर्मनी। करेक्ट। हम्म तो मैं हम्म ये चाहती हूँ कि ओके जर्मनी की सेल्स सबसे कम है, तो विल चेक कि जर्मनी की सेल्स किस चैनल्स में कम है। तो एक बार हम्म प्लीज आप इस पे क्लिक करो, ड्रिल डाउन पे। आप जैसे ही ड्रिल डाउन पे क्लिक करोगे अब आप जर्मनी पे क्लिक करो आके, क्या हुआ इससे? और रीसेलर आ गया जिसका रिस कम है वो। अगर आप देखोगे ये डिटेल्स जर्मनी की ही आई है, यहाँ पर एशिया और हाँ नॉर्थ अमेरिका का कुछ नहीं आया। अच्छा अच्छा ओ ओके। ओके। अब मुझे चेक हम्म। करना है कि अच्छा ठीक है, तो स्टोर में सबसे ज्यादा सेल्स जा रही है, क्या क्या कैटेगरी है वहां पे। एक बार आप स्टोर के बार पे क्लिक कीजिए, यहाँ नहीं पर क्लिक करना है बस, हाँ बार इस पे। पे देखिए। तो मतलब हम्म जर्मनी में जो हमारा स्टोर है उसकी सबकी कैटेगरीज आ गई आपके आगे। आ गई हाँ। राइट। मतलब हम्म हम क्या कर रहे हैं, हम एक डेटा को ना एक्सपेंड कर रहे हैं यहाँ पर, उसकी हम्म डिटेल्स निकालने के लिए। अब आप ऐसे ही नॉर्थ अमेरिका का डिटेल चेक करो, क्लिक ऑन दैट नॉर्थ अमेरिका। तो अब नॉर्थ अमेरिका के चारों चैनल्स आ गए। हाँ करेक्ट। अब उसका हाँ रीसेलर मुझे चेक करना है उसमें क्या क्या कैटेगरी है, देखिए। ओके। राइट। तो इट इज अ काइंड ऑफ फिल्ट्रेशन कि हम क्या कर रहे हैं, उस डेटा को यहाँ पर फिल्टर कर रहे हैं। बट हम्म वहीं पर अगर मैं 3 से 4 चार्ट्स बनाऊंगी तो इट नीड्स अ लॉट ऑफ स्पेस, इसलिए मैंने ये प्लीज ऑप्शन यूज किया। ओह ओके। ओके। अब एक बार हम्म आप ट्राई करके देखो इसे। सबसे पहले आप डालना, कंट्री बहुत हाई है,
आपने हाँ ईयर डालना सबसे पहले, आपके पास ऑर्डर डेट है इन दैट ईयर। ये पूरा आ जाएगा ना, लेकिन इसमें हाँ तो एक्सपांशन आप में ये जो एरो है ना साइड में उस पे क्लिक ये कीजिए। नहीं नहीं ये वाला है, हाँ यहाँ पर भी। और ये जो ऑर्डर डेट है इसके साइड में भी एरो है, तो यहाँ पर वो हेयरचरी एक्सपेंड हो आ, जाता है। ओके ओके। हम्म। हम्म। अब ईयर के बाद आप डालो प्रॉफिट। ओके। आया, ठीक है। 2000 एक्सपेंड कीजिए थोड़ा सा, दो की ही डिटेल्स होंगी यहाँ पे। ठीक है, तो 4 साल की डिटेल्स हैं। अब इस ईयर में हम्म। मुझे सबसे पहले चाहिए कैटेगरी। ईयर में चाहिए आपको कैटेगरी। राइट। कैटेगरी ठीक है, फिर मुझे लेकिन चाहिए, अब देखिए क्या हुआ कि जो कैटेगरी है ना वो आपकी लीजेंड्स में चली गई, विच आई हाँ डोंट वो वांट। आई एम गोइंग टू पुट दिस इनटू एक्स एक्सिस। तो वो ओके, मैं मुझे यहाँ वैसे, से यहाँ ड्रैग कर सकती हूँ। हाँ आराम से कर सकते हैं। अब आप ओके। सब कैटेगरी डालिए। क्या? सब कैटेगरी, प्रोडक्ट सब कैटेगरी, अब आपने कैटेगरी डाला था ना, अब आप सब कैटेगरी डालिए। ओके। तो अभी तो ये डेटा बिल्कुल भी मतलब ऐसे ही नहीं है इंफॉर्मेटिव, राइट? वी नीड टू क्रिएट दैट। सबसे पहले तो ओके। आप इसको ड्रिल अप करो। ड्रिल अप। ओके। एंड यू टेल मी व्हाट हैपेंड विद ड्रिल अप। वी आर जस्ट गेटिंग डेटा ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज। हाँ, और ईयर भी है साथ के साथ। ईयर भी, हाँ हाँ, ईयर भी एक है। और बार ड्रिल अप कीजिए। तो भी ये ईयर वाइज आ गया। बस ईयर वाइज आ गया। अब हम्म। आप क्वेश्चन 4 नंबर, जो फोर्थ का आपका एरो है वो आप यूज कीजिए। इट्स कमिंग। ये प्रोडक्ट, हाँ। अपोजिट है एक दूसरे का। हाँ, एक और बार कीजिए तो आपको फिर सब कैटेगरी भी दिखेगा। हाँ, हम्म। अगेन यू गो विद ड्रिल अप, ड्रिल अप ही आप कीजिए। ठीक है, एक और बार। अब मुझे क्या करना है, एक और ड्रिल अप। अब मुझे 2014 की डिटेल्स चेक करनी है कि उसमें क्या क्या कैटेगरी है। हाँ, लेकिन उसके लिए ना आपका जो ड्रिल डाउन है, अभी क्या है, अब रिपोर्ट आ जाएगी आपके सामने। ओ। आपने क्या किया, 2014 पे क्लिक किया ना, तो हम्म। उसमें कैटेगरी प्रॉफिट मतलब वो पूरी की पूरी टेबल, एक एडवांस फिल्टर का ऑप्शन किया था हमने अच्छा, एक्सेल हाँ में। हाँ। एडवांस फिल्टर में हम्म। क्या होता था कि जो डिटेल्स आपको चाहिए उसको आप फिल्टर कर लो। तो हम्म। आपने जब 2014 पे क्लिक किया ना, तो अब 2014 की ही डिटेल्स यहाँ पर फिल्टर हो गई हैं। फिल्टर होगी, हाँ। ओके। और जब आप बैक टू रिपोर्ट करोगे तो आप आ जाओ। ओके। बट आपको यहाँ पर ये ड्रिल डाउन यूज करना है, इसको एक्टिव करना पड़ेगा। ओ। ओके। एक्टिव अब हुआ है। अब आप 2014 पे क्लिक कीजिए। तो अब 2014 की ये सारी कैटेगरी दिखा रहा है आपको, क्योंकि ये हम्म। कैटेगरीज इसके पास है। हाँ। ठीक है, अब आप प्रोडक्ट। कंप्यूटर्स पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप कंप्यूटर्स पे क्लिक करोगे, देन इट विल शो सब कैटेगरी आल्सो। हम्म। सी, ओके। अंडरस्टूड? तो ड्रिल डाउन अंडरस्टूड। ये है। अब आप इसका हम्म। इनएक्टिव, अब इसे इनएक्टिव कर दो। अभी एक्टिव है ना, इसको हटाना भी पड़ेगा। एंड देन यू ड्रिल अप। हम्म। अब हम ओके। चेक करते हैं अपना थर्ड एरो, जो डबल एरो आ रहा है। हम्म। डबल एरो हम्म। का मतलब है दैट गोइंग टू द सेकंड लेवल। अभी तो हम ईयर वाइज प्रॉफिट पे खड़े हैं। अगर हम हाँ। थर्ड एरो पे क्लिक करेंगे, देन इट बिकम्स प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज प्रॉफिट। वो सीधे कैटेगरी से ही स्टार्ट करेगा। क्लिक कीजिए, हम्म। देखिए। देन इट बिकम्स सब कैटेगरी ऑल्सो। क्लिक कीजिए इस पे। फिर से। हम्म। तो अभी सब सब कैटेगरी ही आ कैटेगरी। रहा है, राइट? सो हम्म। इट्स बेटर कि आप एक टेब चार्ट को ही ऐसे डायनेमिक बना दो ताकि आपको 4 से 5 चीजें इंसर्ट करने की जरूरत ना पड़े। जरूरत ना राइट। पड़े, हाँ। उधर क्या था एक्सेल में कि देयर इज अ लॉट ऑफ पाइवट्स दैट वी नीड टू क्रिएट। पाइवट्स को करने के बाद फिर हमें स्लाइसेस के साथ कनेक्ट भी करना पड़ता कनेक्ट था। करना पड़ता है, हाँ, हाँ हाँ। तब कहीं जाके ये लुक मिलेगा हमें। बट यहाँ हम्म। पर व्हाट वी दीज ऑप्शंस इज ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप हम्म। आराम से इधर काम कर सकते हो। सही है। ओके, सो दिस ओके। इज द वे। ठीक है, तो अभी हमने एक पॉइंट ये डिस्कस किया। साथ साथ थोड़ा सा बस आपको एक ना शीट्स का प्रॉपर्टीज चेक करना और आज के लिए बताती हूँ।
क्योंकि हम्म डजंट मैटर कि हर टाइम ना हमारे पास एक्सेल ही आए, राइट? हम्म हर टाइम हम्म आपके पास पीडीएफ ही आए, तो आपको उसका टाइप चेक करना जरूर आना चाहिए कि जो फाइल आपके पास आई है उसका हाँ। टाइप क्या है। तो ओ। अभी ना मैं आपको 3 फाइल शेयर कर रही हूँ, जो हम हम्म आने वाले सेशंस में इन्हीं फाइल्स के ऊपर काम करेंगे। इसमें ज्यादा फाइल नहीं बनेगी, बस एक फाइल को हम हमेशा यूज करेंगे। तो ओके ये वाली फाइल आप ओपन कीजिए। ओपन नहीं, आप बस सेव कर लीजिए, फिर मुझे दिखाइएगा, ओके? ओके। 1 मिनट, इतने आप ये चैट बॉक्स में से पिक कीजिए। करूँ? हाँ, यस मीता, आप इसे डाउनलोड कीजिए। हेलो। कौन सा ओपन करूँ? फाइन मीता। सो अभी मीता, आप ये बताओ, दिस दिस जो ट्रेनिंग डेटा 1 है, ये आपकी कौन सी फाइल है? ये है एक्सेल एक्स होगी शायद। हाँ, अभी देखो यही सेम चीज है। अभी क्या है, दिखने में सब एक्सेल है, राइट? तो व्हाट वी हम्म नीड टू डू, यहाँ पर ट्रेनिंग डेटा 1 में विल डू राइट क्लिक एंड ऑप्शन हम्म विल बी प्रॉपर्टीज। अब आप जैसे ही प्रॉपर्टीज करोगे तो यहाँ हम्म पर वो दिखाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डॉट एक्सेल एक्स, राइट? हम्म वहीं पर हम्म अगर मैं प्रोडक्ट यार्चरी में जाऊं, हम्म यहाँ पर अगर मैं प्रॉपर्टीज में गई, तो यहाँ पर यू विल एबल टू सी कि सीएसवी फाइल है आपका, सीएसवी है, हाँ। राइट? तो ओके, ये हाँ। फॉर्मेट चेक करना आपको आना चाहिए, ताकि आप यहाँ से ना करेक्ट कनेक्टर उठा सको। तो ओ, अभी इसको ठीक तो है। एज अ आप फाइल कोई भी एक्स वाई जेड आप नाम दे दो, और एक न्यू पावर बीआई आप ओपन कर लो। फाइल ओपन करूँ? नहीं, इसको तो आप सेव कर दो। इसको अगर आपको प्रैक्टिस के नाम से शेयर सेव करना है, कैसे भी सेव करना है, आप इसको सेव कर दो। एक न्यू पावर बीआई अब आपको ओपन करना है, ओके? So first of all, our task is to load all these 3 files. Okay? तो अभी जैसे हमने देखा कि वो ना CSV फाइल है. So you need to go to get data. You go that. Go to get data. स्लो चल रहा है। We need to choose हाँ text and CSV. हम्म अब आप ये पिक कर लो तीनों फाइल्स। ये 1 by 1 ही आपको करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स 2017, स्टोर सिटीज, एवरीथिंग। लोड करूँ?
या लोड ओनली, सारी फाइल्स आपको लोड ही करनी है। ओके, और भी दोनों कर दूं हाँ, प्रोडक्ट कि हेयर नहीं भी आएगी? और सेल्स उसको भी दोनों। और नया ओपन करना पड़ेगा? हाँ सॉरी। और दो फाइल ओपन ऐड करने के लिए नया ओपन करना पड़ेगा नहीं नहीं कि? नहीं, we will come to get data only, we'll choose text and CSV। ओ, ओके। हाँ सेम ही होगा, बस जस्ट यू नीड टू क्लिक ऑन स्टोर सिटीज और वो ओपन होगा। ओके, ऑल डन। ओके, सो अभी देखिए आपकी ये तीनों फाइल्स यहाँ पे आ गई हैं, हम्म। करेक्ट। ओके, हम्म। अभी इसमें और भी काम है बट मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी। तो हमने पहला स्टेप तो अपना करना सीख लिया, दैट इज टू लोड द डेटा। ओके, डेटा, हाँ। तो अब हाँ। जब हम कल कनेक्ट होंगे तो मैं आपको ट्रांसफॉर्म द डेटा जो सेकंड स्टेप है उसके बारे में बताऊंगी। और ओके। जो थर्ड स्टेप है ना डेटा मॉडलिंग, अब वो दिखेगा आपको। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास एटलीस्ट 3 शीट्स है। तो मैंने आपको बोला था कि जब भी हमारे पास डेटा मॉडलिंग होगा इट मीन्स हमारे पास मोर देन अ टेबल है। तो अभी आपके पास हम्म। एटलीस्ट 3 टेबल्स तो हैं ही, हाँ। राइट। तो अभी इसमें डेटा मॉडलिंग तो नहीं हो सकती, रीजन भी मैं आपको कल ही बताऊंगी, राइट। ओके। तो अभी आप इसको सेव कीजिए क्योंकि अब हम इसी फाइल पे काम करेंगे, जितने भी सेशंस होंगे वो सिर्फ इस फाइल पे होंगे। आप इसको ओके। F12 करके लिख दीजिए पावर बीआई प्रोजेक्ट। अभी नहीं हुआ सेव, इसको करना, हाँ हाँ, पावर बीआई हाँ। प्रोजेक्ट के नाम से आप इसको सेव करें। बाकी ये जो रिकॉर्डिंग है इफ यू वांट टू लिसन सो फॉर अ जनरल नॉलेज आप इसको कर सकते हैं। अदरवाइज जो कल से हमारे सेशंस होंगे दैट विल बी द प्रैक्टिकल वन। ओके। ओके मीता, बाकी ओके। हम फिर अपना यही रखें आराम से, लाइक 8 मैंने बोला टाइम। था ना, तो हम यही रखते हैं 8 और 8:30 समथिंग लाइक दिस। ओके, नो ओके, प्रॉब्लम। एक दिन पहले ही आपको बता दूंगी विच टाइम वी शुड कनेक्ट, तो हम आराम से कर लेंगे। ओके, ठीक है। ओके। ओके। थैंक्स नीता। थैंक